ایران میں صورتحال معمول پر آنے کے بعد ٹرمپ کی ایرانیوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جلد مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ لکھا، مظاہرے کرتے رہو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو، قاتلوں اور ظالموں کے نام یاد کر لو، انہیں بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ مزید کہا، ایرانی عہدیداروں سے اس وقت ملوں گا جب یہ قتل و غارت رک جائے گی۔ مشیگن میں میڈیا نے سوال کیا، ایرانیوں کے لیے امداد آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ امریکی صدر نے کہا، آپ کو خود ہی بات سمجھنا ہوگی۔ ایران کے دوست امریکہ کے دشمن، ٹرمپ نے ایران سے تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، حکم کا فوری اطلاق ہوگا۔ امریکی صدر کا نیا فرمان، برکس ممالک کو امریکی ڈالر کے سوا دوسری کرنسی استعمال نہ کرنے کا حکم۔ کہا، بات نہ مانی تو سخت تجارتی اقدامات کر سکتے ہیں۔ چین نے رد عمل میں کہا، تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہو سکتا۔ جرمن چانسلر مرز کا ایران پر تبصرہ، کہا جو حکومت تشدد سے قائم ہو تو گویا وہ ختم ہو چکی۔ ایران میں حکومت حامی مظاہرے جاری، تہران سمیت مختلف شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ حکومت کے خلاف مظاہروں میں 2000 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ مغربی ذرائع اموات کی تعداد کئی گنا زیادہ رپورٹ کر رہے ہیں۔ مظاہروں کے دوران گرفتار 26 سالہ نوجوان کو آج پھانسی دیے جانے کا امکان۔ ایران کی جامعات میں امتحانات 1 ماہ کے لیے ملتوی۔ پاکستانی سفارت خانے کا ایران میں موجود پاکستانی طلبہ کو سفارت خانے سے رابطے کا مشورہ۔ ایرانی قوم کا سب سے بڑا قاتل ہے ڈونلڈ ٹرمپ، دوسرا بڑا قاتل نیتن یاہو۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں، ٹرمپ نے کہا تھا ایرانی عوام قاتلوں کے نام یاد رکھیں۔ جعلی آرڈیننس کس نے نکالا، کیسے نکالا؟ آرڈیننس واپس ہونے پر بھی پیپلز پارٹی کی ناراضی برقرار۔ قومی اسمبلی میں آغا رفیع کا جعلی آرڈیننس جاری کرنے والوں کو فارغ کرنے کا مطالبہ۔ کہا، صدر زرداری سے باریک واردات کی گئی۔ سینیٹر پلوشہ خان بولیں، جعلی مینڈیٹ اور جعلی ڈگریوں کا تو سنا تھا، لیکن جعلی آرڈیننس کا پہلی بار سنا۔ اکنامک زون آرڈیننس پر صدر مملکت کو دھوکہ دیا گیا، حکومت ہوش کے ناخن لے۔ قلات میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ مرنے والے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کراچی جہانگیر روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، ملزم کے ساتھی فرار۔ ڈاکو کی فائرنگ سے شہری بھی زخمی۔ اور کراچی عباسی شہید اسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی، عملے نے فوری آگ بجھا دی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، آگ شارٹ سرکٹ سے لگی۔ ٹرمپ کی ایرانیوں کو اکسانے کی کوشش، سوشل میڈیا پر جلد مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ لکھا، مظاہرے کرتے رہو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو۔ مزید کہا، ایرانی عہدیداروں سے اس وقت تک نہیں ملوں گا جب یہ قتل و غارت رک جائے گی۔ میک ایران گریٹ اگین کا نعرہ بھی لگا دیا۔ اسلام آباد میں سینئر وکیل قتل، تھانہ I-9 کی حدود سے ملنے والی لاش ہائی کورٹ کے وکیل شیخ عبدالرؤف کی نکلی۔ پولیس شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف۔ اسلام آباد بار نے کل عدالتی ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں پرانی دشمنی پر فائرنگ سے شہری جاں بحق، 8 افراد زخمی، پولیس نے 6 افراد کو حراست میں لے لیا۔ اور پنجاب دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بند، M3 پر فیض پور سے سمندرتی ٹریفک معطل، M2 لاہور سے کوٹ مومن اور M4 پنڈی بھٹیاں سے گوجرا تک بند۔ اڈیالہ جیل میں بانی سے ملاقات کا دن، کسی کو بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ بانی کی تینوں بہنوں کا کارکنان کے ہمراہ فیکٹری ناکے پر دھرنا، پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ کراچی میں گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی، گھر میں بچپن سے آنے والا شخص 60 تولہ سونا چوری میں ملوث نکلا۔ پولیس نے 60 تولہ سونا چوری کا کیس 24 گھنٹوں میں حل کر دیا۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نظام ختم کرنے کا فیصلہ، میئر کراچی مرتضی وہاب کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام لانے کی ہدایت۔ کہا، 7 ہائیڈرنٹس ختم کر کے لائنوں سے پانی فراہم کیا جائے، عوام کو پانی ان کی دہلیز پر فراہم کرنے کا بندوبست کریں۔
मेयर कराची मजीद बोले, हाइड्रेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता साल खत्म हो चुका, नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किए जाएंगे। कराची के शहरी कभी खुश कभी गम की सूरत हाल से दो चार, समझ नहीं आ रहा खुशियां मनाएं या अफसोस करें। शहर का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर टैंकर्स पर इन्हिसार करता है। मुतादिद छोटी बड़ी आबादियों में लाइनों से पानी की फराहमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। इन इलाकों में रोजाना 6000 वाटर टैंकर्स पानी की फराहमी का वाहिद जरिया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द जमात है, टीटीपी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई की जाए, बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। अदियाला रोड के धागन नाके पर गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, दहशतगर्दों के लिए किसी के दिल में कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए, दहशतगर्दी के मसले पर सियासत ना की जाए। बल्दियाती निज़ाम पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए, मुंतखब अरकान ही जमहूरी निज़ाम चलाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, एक खौफ है, निज़ाम मजबूत हो गया तो इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, कानून मौजूद है, रवैये बदलने होंगे। 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 59 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे सस्ता हो सकता है, लाइट डीजल 2 रुपये 8 पैसे नीचे लाने की सिफारिश, हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल हैं, स्ट्रेटेजिक मरकज बनने जा रहा है। द नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट, अप्रैल में मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम होगा। रेकोडिक में 5.9 अरब टन के मादनी ज़खायर हैं। कीमती पत्थरों की मारियत 450 अरब मगर बरामदात सिर्फ 5 अरब 8 मिलियन डॉलर्स हैं। कराची में घर के भेदी ने लंका ढा दिया, घर में 55 से आने वाला शख्स 60 तोला सोना चोरी में मुलव्विस निकला। पुलिस ने 60 तोला सोना चोरी का केस 24 घंटों में हल कर दिया। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गैस लीकेज, दम घुटने से 3 खवातीन जा बहाक, एक की हालत नाजुक। शरफपुर के घर में गैस भर गई, वालिद की जान चली गई, मां और 4 बच्चे बेहोश। ओबाड़ों में एक ही रोज में सरगजीदगी के 10 से ज्यादा वाकयात, आवाम में खौफ फैल गया। जख्मियों में 70 साल बुजुर्ग खातून, स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल। कंदकोट में खसरे के बायस 2 कमसिन बहन भाई जान की बाजी हार गए। जाबहाक बच्चों की शनाख्त 2 साला जकाउल्ला और बच्ची की शनाख्त 1 साला कर्मा के नाम से हुई। कराची अल-फलाह थाने की हुदूद में शोएब का कत्ल, आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। 4 दिन बाद भी पुलिस मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। बाग मलीर में नौजवान को लूट लिया गया, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। पंजाब में सीसीडी के 29 सितंबर के मुबैना मुकाबलों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। 3 सगे भाइयों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद मारे गए थे। इंक्वायरी का हुक्म एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्ठा ने दिया। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस पाकिस्तान में होगी, मुत्तहदा अरब अमारात से मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई के वफ्द की मुलाकात, पहले मरहले में कराची से आगाज किया जाएगा। स्टेट बैंक नए करेंसी नोट के इजरा के लिए तैयार, सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने जदीद सिक्योरिटी फीचर्स के साथ तैयारी मुकम्मल कर ली। वफाकी काबीना की हतमी मंजूरी के बाद करेंसी नोट की छपाई का हुक्म जारी होगा। नए नोट रवां साल के आखिर तक गर्दिश में आ सकते हैं। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार, पेंटागन ने सदर को तजावीज दे दी। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एटमी प्रोग्राम पर हमला भी शामिल है। साइबर और सिक्योरिटी निजाम भी निशाना हो सकता है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप फौजी कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी सरहद के करीब अमरीकी लड़ाका तैयारों की उड़ान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। सदर
ट्रंप ने ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, हुक्म का फौरी इत्तलाक होगा, चीन का भी जवाब आ गया। वाशिंगटन में सफारत खाने ने कहा, तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं हो सकता, जबर और दबाव किसी मसले का हल नहीं। ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके, मुजाहिरों के बायस शदीद दबाव का सामना है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज का बयान। भारत के दौरे के दौरान सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत तशद्दुद से कायम हो तो गोया वो खत्म हो चुकी और हम ये खुद देख रहे हैं। अपोजिशन लीडर के कागजात पर तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, स्पीकर से मुज़ाकरात पर बात नहीं हुई, अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। चीफ व्हिप आमिर डोगर ने अय्याज सादिक को खत लिख दिया। जाली मैंडेट और जाली डिग्रियों का तो सुना था, लेकिन जाली ऑर्डिनेंस का पहली बार सुना है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान का कहना है कि इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को धोखा दिया गया। हुकूमत होश के नाखून ले, जाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद की जाए, गलती करने वालों को सफों से निकाले। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा। कहा, सदर जरदारी से बारीक वारदात की गई। आगा रफी ने कौमी असम्बली में कहा, नालायक टीम के साथ काम नहीं हो सकता, हुकूमत दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर देती है, हमें आपकी नीयत और तरीका वारदात मालूम है। कराची में पीटीआई ने 9 मई जैसा वाकया करने की कोशिश की, सहाफियों को निशाना बनाया, रिपोर्टर जख्मी हुए, गाड़ियां तोड़ी गईं। शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एक थ्रेट आई थी, केपी हुकूमत को आगाह किया था, भरपूर सिक्योरिटी भी फराहम की। ये सिंध हुकूमत थी जिसने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पीटीआई का कौमी धारे में सियासत का मूड नहीं, वाकये की वीडियोज भी चला दी। कराची में टैंकर से पानी की फरहमी खत्म करने का फैसला। मेयर मुर्तजा वहाब ने वाटर कॉर्पोरेशन को मुतबादिल निज़ाम लाने की हिदायत कर दी। कहा, हाइड्रेंट्स खत्म करके लाइन से पानी फराहम करें, अब नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, टैंकर से आवाम की जान छुड़ाएंगे। तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही कि वहां से दरख्त काट के अंडरपास या ओवरहेड बनाए। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। इस्लामाबाद में पोलन एनर्जी का बायस बनने वाले दरख्त काटे, एक की जगह 4 दरख्त लगा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खिताब। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद का एतराज। अली मोहम्मद ने वाकया अफसोसनाक करार दे दिया। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत जवाब देने से क्यों भाग रही है, मामला कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। टेक्नोलॉजी के जरिए टेली मेडिसिन से इलाज मुमकिन हो रहा है। शोबा तिब में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है, चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर मेहनत करना होगी। बिलावल भुट्टो का कराची में कॉन्वोकेशन से खिताब। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शोबा तालीम में इस्लाहात सूबाई हुकूमत की तरजीह है। एसएसपी किमाड़ी और टीम टारगेट का मुश्तरका एक्शन। मुर्दा जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले रंगों हाथों पकड़े गए। मुर्दा जानवर बल्दिया सईदाबाद लाकर फरोख्त किए जाते थे, गोश्त सस्ते दामों शहर में बिकता था। कराची मंगोपीर तशद्दुद का मामला कत्ल केस में तब्दील। उस्ताद के तशद्दुद से जख्मी 6 साला हसन चल बसा। मुलजिम को 2 लाख रुपए के एवज जमानत मिल चुकी थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में कत्ल खता की दिफात का इजाफा किया जाएगा, इसके बाद दोबारा गिरफ्तारी होगी। भारत में T20 वर्ल्ड कप मैचेस नामंजूर, बांग्लादेश बोर्ड डट गया। आईसीसी वीडियो लिंक इजलास में फैसला ना हो सका। बीसीबी ने भारत में खेलने से इनकार किया। मैचेस किसी और मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। आईसीसी के मौके पर नजरसानी की अपील, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक भी किया। पाकिस्तानी निसात खिलाड़ियों की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत, भारत की हठधर्मी जारी। ज़राए के मुताबिक अमरीकी टीम का हिस्सा 4 खिलाड़ियों के वीज़े मुस्तरद कर दिए। कोलंबो में कौंसल खाने ने अली खान, शायान जहांगीर, मोहम्मद मोहसिन और एहसन आदिल को वीज़ा जारी न किया। ज़राए आईसीसी के मुताबिक मामला जल्द हल कर लिया जाएगा।
अमरीकी डॉलर के सिवा दूसरी करेंसी इस्तेमाल ना करें, ऐसा किया तो सख्त तजारती इकदाम कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया, कहा इन ममालिक को अहद करना होगा, वो डॉलर की हिमायत जारी रखेंगे। रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, दारुल हुकूमत कीव और खार्किव पर मिसाइल बरसा दिए, 4 अफराद हलाक, 6 जख्मी। मॉस्को ने 20 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया, कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। गजा में इजरायली दहशतगर्दी में पुलिस अफसर समेत 3 फलस्तीनी शहीद, हमले की जिम्मेदारी इजरायली हिमायत याफ्ता फलस्तीनी ग्रुप ने कबूल कर ली। सैऊनी फौज ने 20 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए। अमरीकी कब्जे की ख्वाहिश कबूल नहीं, ग्रीनलैंड हुकूमत का पैगाम, कहा ये इलाका डेनमार्क की शाही सल्तनत का हिस्सा है। ग्रीनलैंड नेटो का रुकन भी है, दिफा नेटो के जरिए ही होना चाहिए। अमरीका और डेनमार्क के मुज़ाकरात रवां हफ्ते शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र पर सोशल मीडिया की पाबंदी, मेटा ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स के अकाउंट बंद कर दिए। निस्फ मिलियन से ज्यादा बच्चों के अकाउंट्स डीएक्टिवेट। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम की कप्तान एलिसिया हेली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। भारत के खिलाफ सीरीज के बाद तमाम फॉर्मेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। 35 साल एलिसिया ने 295 मैचेस में 60,000 से ज्यादा रन बनाए। समंदर की लहरों पर हुक्मरानी की जंग, स्पेन में कश्ती रानी के दिलचस्प मुकाबलों का आगाज। छोटी बड़ी 21 कश्तियां बहरे अटलांटिक के बुलंद लहरों से नबरदास्मा। रेस का अख्तिताम एंटीगा में हुआ। सऊदी सहरा में फर्राटे भरती धूल उड़ाती गाड़ियां। डकार रैली का 8वां मरहला जनूबी अफ्रीका वारयोवा के नाम रहा। कतर के नासिर अल अतिया रेस में सबसे आगे। बाइक कैटेगरी में मैक्सिकन राइडर ने बढ़तरी हासिल की। और विंटर ओलंपिक्स गेम्स का इटली में टार्च रेले, मशल फ्रांसीसी सरहद के करीब पहाड़ी पर ले जाई गई। सख्त सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दाहों ने वेलकम किया। विंटर गेम्स का आगाज 6 फरवरी से होगा।